Hello. Today we will learn about the second step of gene expression. So in the last class we discussed the first step of gene expression, that is transcription. And in that class we discussed about the mechanism of transcription in bacteria. Same thing also happens in eukaryotic cell also, but with some difference. So what is the difference? In eukaryotic cell, suppose this is the nuclear area, and in this nuclear area transcription takes place, and this transcription resulted in a mature mRNA, and this mature mRNA when comes out, it participates in second step of gene expression, that is translation. I will define what is translation. So in biology, translation means known as a protein synthesis, or in other words we can say biosynthesis of proteins. So messenger RNA, in one class I told you RNA 3 type: mRNA, ribosomal RNA, rRNA, tRNA means transfer RNA. So all the 3 types of RNA participate in translation, but out of them mRNA contain message for amino acid sequence. So this message is nothing but genetic coded message. Today we will also discuss genetic code. So entire mRNA will not participate in translation. Similarly, entire book from the front page, acknowledgement page, we never read all these things. Similarly, end of the page, whatever information is written, we also not interested to know. That means entire book we will not read, we will read the portion that is necessary. Here also mRNA is a comparatively long molecule. Entire mRNA will not be translated. The part of the mRNA that will be translated is called translational unit. So what I told in transcription, entire DNA will not participate. A small part of DNA will participate, that is called as the transcription unit. So transcription unit preceded by promoter, followed by terminator. So in between the structural gene present. Suppose this is the structural gene of a eukaryote. All of we know eukaryotic gene is a split gene. Split gene means introns present. Introns are intervening sequences that are not necessary. So if the split gene transcribed, it resulted in a immature mRNA. Why it is immature? Because it contains intron representatives. Suppose these are introns. So these introns should be eliminated during processing. So that's why this mRNA having intron segments
as well as exons known as hnRNA. हेटेरोजीनस न्यूक्लियर, HN का मतलब हेटेरोजीनस न्यूक्लियर RNA. So this hnRNA also known as pre-mRNA. Pre means primitive or precursor. So this primitive or precursor mRNA need three-step processing. Picture coming clearly. So in eukaryotic split gene, immediately after transcription, this is the first step of gene expression, transcription. So what we got? We got hnRNA. In English we can say it is a nascent RNA. Nascent means newly synthesized. In Odia you can say Sabdya Navojata. So this is the newly synthesized RNA. And this RNA is not fit for translation. Inside nucleus, it will undergo three-step processing. I told you first step capping, 7-methyl guanosine triphosphate जुड़ जाएगा अलग से. Then intron removal, that is called splicing. Splicing means removal of intron and joining of exons sequentially. And after that, at the 3' end, polyadenylation. This is called tailing or polyadenylation. So I told you why this capping and polyadenylation important, because these two tags protect the mRNA from degradation, from destruction. Otherwise, inside nucleus, nucleic acid digesting enzyme, nuclease, they will simply degrade it. So poly-A-tail and cap protect the RNA molecule from immediate degradation. It will degrade, it will take time. By that time sufficient translation will take place. So after successful processing, you can see the length of the gene will reduce, because introns part are very lengthy, they are not very short. So now this is our mature RNA molecule, mRNA. So if I ask what is the precursor of mRNA, your answer will be hnRNA. Precursor, primitive form, prior immature form. So hnRNA or pre-mRNA undergo three-step processing: capping, splicing, tailing. Addition of tailing, three-step processing. Clear? So these mRNA now escape to the cytoplasm through nuclear pore. So through this nuclear pore, once mRNA comes out, and this mRNA participate in translation process. So what will happen after translation? After second step of gene expression is over, we will obtain the primary structure of a polypeptide chain. AA means amino acid. So amino acid has a two end, that is N terminal end and C terminal end.
Let's imagine one amino acid. This is the amino group, this is the acidic group. This is the structure of a amino acid. Amino terminal end or N terminal end. Amino acid. This is the acidic carboxylic acidic group. So this type of organic molecule is a micromolecule, and this R is variable side chain group. This R is variable, and in organic chemistry you know the nearest carbon of carboxylic acid is called as alpha carbon. So this alpha carbon is asymmetrical or chiral, not chiral, it's chiral, because it carries 4 different groups. So all of we know during translation 20 types of amino acid participate. So all amino acids are same in these 4 sites. Only difference is R. So this R is variable side chain group. Variable side chain group. So variable means 20 different type of R chain there. So all amino acids differs in R group. So in 11th class you know the simplest amino acid having H in the R group, that is glycine. So glycine is the simplest amino acid. Clear? Because the R group is H. Now you consider glycine is symmetrical or asymmetrical. What will be your answer? In organic chemistry, if you know two same group, then it is symmetrical. So glycine is symmetrical. That means its alpha carbon is not chiral. Clear? So here I am listing what are the requirements of translation. I will define what is translation, but we will now write requirements for translation. What are the requirements? पहला requirement तो mRNA, because it carries genetic information in form of code, that is genetic code. So next requirement, other types of RNA, that is rRNA present in ribosome. So let's write ribosome, because that ribosome contain rRNA. rRNA is the structural component of ribosome, and in one class I told you one type of rRNA also acts like a catalyst, ribozyme, that is 23S rRNA. राइबोसोम के अंदर एक आरआरएनए होता है जो पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसिस करता है. सो पेप्टाइड बॉन्ड एग्जिस्ट इन बिटवीन एमिनो एसिड. सो दिस इज ए कोवैलेंट बॉन्ड. दिस कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड. सो इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन number of amino acid is variable. So amino acid number depends upon the genetic code. So now you consider mRNA molecule consists of 4 type of base U, C, A, G. But polypeptide chain consists of 20 type of amino acid.
and interestingly there is no complementarity between adenine and thymine, cytosine and guanine. One nucleotide cannot be a complementary to amino acid, both are different. Clear or not? So in MIL, Mother Indian language, one paragraph will be given in English. You will have to translate it into another language. That is translation. So here in biology, translation means the language of nucleotide will convert into the language of amino acid. So mRNA entirely consists of 4 types of nucleotide. It is a polymer. Polypeptide chain is also a polymer. It is a polymer of 20 types of amino acids. So now we are able to define what is translation. Translation is a process of polymerization of amino acid. बहुत छोटा डेफिनेशन. ट्रांसलेशन में क्या होता है? 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूम रहा होता है, that will be covalently bonded. That is in English called polymerization. It is a polymer, the process of polymer formation, polymerization. So translation is a polymerization of amino acids to form a polypeptide. Now question arises, which type of amino acid will come first, which one next? So that depends upon the genetic information retained in mRNA. So mRNA contains genetic information. So actual information is there in DNA. DNA send a copy of information. This is the information transfer machinery. That in genetic information from DNA transfer to RNA. Now that RNA retaining the genetic information will be translated into amino acid sequence. So amino acid sequence of a polypeptide is called 1-degree structure. In organic chemistry you will learn 1-degree structure. 1-degree structure means sequence of the monomer. tRNA में क्या कह रहा था? 1-degree structure means sequence of nucleotide. In mRNA also 1-degree structure means sequence of nucleotide. But in protein or polypeptide, 1-degree structure means sequence of amino acid. And this initial 1-degree structure sequence is not at all functional. It is very important. Don't think that this polypeptide chain will do functioning immediately after translation is over. So what will happen? This 1-degree structure need post translational modification. मतलब ट्रांसलेशन के उपरांत कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए. Then only it will acquire its biological function. So 1-degree structure become 2-degree structure, 2-degree structure become 3-degree structure. So you all of you know that a polypeptide chain can be only functional once its tertiary structure is achieved. Without tertiary structure, protein is totally non-functional. Clear? Let's tell in Odia, otherwise students will feel it is a English class. Anyway, पॉलीपेप्टाइड चेन जोटा नुआ तैयारी ला
तार प्राइमरी स्ट्रक्चर अच्छी एटा केबे फंक्शन करि परिबनी ताकू फंक्शन करिया पई हेले टर्शियरी स्ट्रक्चर एक्वायर करिया को पड़े ताले टर्शियरी स्ट्रक्चर एक्वायर करिया पई ताकू सेकेंडरी स्ट्रक्चर दे फॉलो करिया पड़े जेमिति तमे गोटे स्विमिंग शिक्षा पई गले डांस क्लास को गले ट्रेनर रहिछ ट्रेनर मीन्स टीचर he or she will teach you how to dance, how to swim. धर पहरिया को जाइछ you are the beginner तेणु पहरु बुड़ी जीवार चांस अछि at that time that trainer will rescue you तुमको बंचै देबे बेटा ऐसा नहीं तैरते ऐसा ऐसा तैरो that is one type of training. Similarly some trainers are there, they will guide how to fold. This changing of structure is nothing but folding, appropriate folding. If any inappropriate folding, that tertiary structure is non-functional. Clear? Alzheimer's disease. It is a disorder of brain inside nerve cell that polypeptide chain will fold in irregular way, so that leads to a Alzheimer disease. अटल बिहारी वाजपेयी स्मरण शक्ति रहिला नि लास्ट ता माने कोन से पेशेंट मानकर एबनॉर्मल फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन इज द कारण न्यूरॉन भितरे ट्रांसलेशन तो हो गया लेकिन फोल्डिंग ठीक से नहीं हो रहा है. सो एप्रोप्रिएट फोल्डिंग पई किछि असिस्टेंट प्रोटीन अछंती से माने कहे पॉलीपेप्टाइड ए भला फोल्डिंग हो जेमते छांचो ता दिरे पड़ी गला माने से माटीटा गोटे डेफिनाइट शेप रे पळे आसे. सिमिलरली सम छांचो लाइक प्रोटीन्स आर देयर that will assist this polypeptide chain to acquire the functional tertiary structure, that is called chaperone protein. Very interesting. Next सर्च कर देखिबो मोर एंट्रेंस परीक्षा रे एटा पड़थिला बुढ़ा काले जो एंट्रेंस को देइथिली that is chaperone. So chaperone proteins are just like trainers. They will rescue one polypeptide which is undergoing wrong folding. जो polypeptide ता बहादुरी मारी की भूलभाल फोल्डिंग होतुओ सी ताको रेस्क्यू करिवो एवं सही भावे सठिक भावे फोल्डिंग करिवो. एटा को मन रखियो चैपेरोन प्रोटीन सोई जीवनी अमृतांजन लगे कि सोई जीवनी भलसे मन देकरी सुनिबो भलसे मन देकरी सब सुनिबो ताले चैपेरोन प्रोटीन कोन करूची ना पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन रे सहाय्य करूची. मन रहिला एते कष्ट रे डायग्राम कर देछि मोइटे ट्रांसलेशन भितरे गोटे एक्स्ट्रा जिंस करती करूची रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. आमे समस्त जानिबो जीन माने डीएनए सेगमेंट से डीएनए सेगमेंट रो एक्सप्रेशन जानिबो. धर मु घर बाहर भी कॉलेज आम कॉलेज रो प्रिंसिपल मते फोन करिवे आइदर से सकाळ फोन करि पारती मते घर बाहरिया पूर्व आज टिके स्ट्राइक हेछि आम कॉलेज रे कोरोना बाहर जति आपण सारा आसीबे ताले मु जोठी न्यूज पाइली मु सेठु बंद ही ना मु गली की डेस्टिनेशन से बड़ा जीन एक्सप्रेशन रे सेल बहुत किछि स्टेप रे रेगुलेशन करे काहे कि सेल इज वेरी इकोनॉमिकल. सेल रो करेंसी कोडा एटीपी आजे बाजे मन खुशी पई एक्सप्रेशन कले एटीपी खर्च तेणु सेल इज वेरी इकोनॉमिकल. अननेसेसरी जीन
ट्रांसक्रिप्शन करिवनी कि तार ट्रांसलेशन करिवो। तेणु जीन एक्सप्रेशन will be regulated at various level. तेणु what are those level of gene expression in eukaryotes? यूकैरियोटिक रो जीन एक्सप्रेशन रे रेगुलेशन कोठी कोठी संभव। प्रथम स्टेप रे रेगुलेशन संभव इंग्लिश रे कोन कहबी रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। जो लेवल रे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट तैयारी हो सेही लेवल रे ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करा जिवो। धर एटी ट्रांसलेशन यथेष्ट होलानी सेल आउ दरकार को काई के अननेसेसरी एटी खर्च करी कि से ट्रांसक्रिप्ट बनेबा एटा को स्टॉप कर दो। बैक्टीरिया तार ट्रांसक्रिप्शन लेवल रे ही मोस्ट ऑफ द जीन को कंट्रोल करि था। एटा बडे वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट मन रखियो। मो यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन रो चारोटी स्टेप कहबी जोटी रेगुलेशन पॉसिबल किंतु बैक्टीरिया तार ट्रांसक्रिप्शन लेवल रे ही रेगुलेशन कर दिए। जदि आवश्यक अलाउ करिवो जीनटा एक्सप्रेस हो जदि आवश्यक नाही सेठी स्विच ऑफ कर दो बंद कर दबो। ताले सेकंड स्टेप कोन एचएनआरएनए हे गेला यूकैरियोटिक रे सेकंड प्रोसेसिंग स्टेप ता कोन हे करिवो ना रेगुलेशन एट द प्रोसेसिंग लेवल। तने प्रोसेसिंग लेवल माने बेसिकली स्प्लाइसिंग लेवल। स्प्लाइसिंग हेले तो मैच्योर हियो स्प्लाइसिंग होबो इंट्रोन गुडा को थियो सेवटा ट्रांसलेशन के लिए फिट नहीं है। ताले एटा सेकंड स्टेप ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। से बळे न्यूक्लियर कोर देखि ट्रांसपोर्ट हेकरे आसीबो कोरियर वाला से पैकेट रो एड्रेस पढी कि तुम घर द्वारे पहुंचीबो डिलीवरी पई। से बळे ए एमआरएनए मैच्योर होला परे से गोटे एड्रेस द्वारा आसी कि डेस्टिनेशन रे पहुंचीबो। तो एटी ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म ए लेवल रे भी रेगुलेशन हेई परिबो। धर भूलवशत मेंचेगा एमआरएनए हो जाइए तेणु से एमआरएनए टा से न्यूक्लियर एरिया भितर रहियो एठी आसिले अजथा भिड़ जमी जीव राइबोसोम मानकर राइबोसोम छाड़ीबेनी ताको ट्रांसलेशन करिकि दम नेबे को मूलरो से एमआरएनए मस्ट नॉट ट्रांसपोर्ट सेठी रहियो। तेणु ताको इनएक्टिव करिकि रखिया पई तार सब जेमति क्रिकेट खेल रे जेतबेले मेघ होथुबो सेतबेले कोन होबो ना संगे संगे ग्राउंड बाहर कपड़ा पड़े आसीबो ढांकी पकेबे। तेणु जोटी पिच बॉल पड़िबो सेटा को ढांकी देबे सो दैट रेन मस्ट नॉट डैम्प द सॉइल नले बॉलटा बाउंस होथु दबी जाउथु बॉलटा। तेणु ताको ढांकी की रखो। एबेला some ढंकालिया प्रोटीन्स आर देयर दे विल ढांकी माने ढांकीबे सब बुझिबे न इंग्लिश रे कहले बुझि पाइबे माने दैट प्रोटीन विल कवर द सेंसिटिव पार्ट ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए ट्रांसलेशन पई राइबोसोम माने भिड़ करियो ना एमिति गोटे साइट अछि स्टार्ट साइट का इनिशिएशन कोडन ताकू किसी प्रोटीन आसी ढांकी दे ना उसको कोई राइबोसोम पढ़ पाएगा ना ट्रांसलेशन हो पाएगा। मु ताकू कोच ढंका ढंकी प्रोटीन तेणु मुता भीतर को जाऊनी ताले ट्रांसपोर्ट स्टेप रे भी जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन ही परिबो। देन फाइनल स्टेप एटा फोर्थ स्टेप ऑफ रेगुलेशन हे जो तेणु रेगुलेशन एट ट्रांसलेशनल लेवल ट्रांसलेशन लेवल रे भी रेगुलेशन ही परिबो। तेणु बैक्टीरिया रो जीन एक्सप्रेशन कोन स्टेप रे रेगुलेशन हुए वन मार्क क्वेश्चन। बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन विल बी रेगुलेटेड एट ट्रांसलेशनल लेवल। ट्रांसलेशनल लेवल बुझी पाइल
ट्रांसक्रिप्शन फर्स्ट स्टेप इज ट्रांसक्रिप्शन लास्ट स्टेप है ट्रांसलेशन तेणु यूकैरियोटिक रे जीन एक्सप्रेशन रो रेगुलेशन चारटा स्टेप रे हुए बैक्टीरिया रे प्रथम स्टेप रे बेसिक गुरुत्व दिया जाए तेणु इन केस ऑफ बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन in prokaryotes rate of transcription initiation is the predominant site for control of gene expression bacteria रे control होवा को transcription रो पुनी तीनटा स्टेप अछि पढैतिली initiation elongation termination मूलरू माइले जीवोसरी तेणु मूल माने initiation तेणु transcription initiation level ता होची predominant site कंपैरेटिवली मन रहउची निज कथा जानि दल हमर जीन एक्सप्रेशन चारटा लेवल रे रेगुलेट हो किंतु बैक्टीरिया रे प्रथम लेवल सेटा ट्रांसक्रिप्शन रो इनिशिएशन लेवल रे रेगुलेशन होबो ना कम टू द रिक्वायरमेंट्स एमआरएनए दरकार राइबोसोम दरकार टीआरएनए दरकार 20 रकम रो एमिनो एसिड पई 20 रकम रो टीआरएनए दरकार तेणु टीआरएनए कौन करिवो ना एमिनो एसिड को आनिबो 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड एबे सब आ दुईटा एमिनो एसिड बढी गलानी साइंटिस्ट माने जानिलानी वर्तमान सेलेनोसिस्टीन मो जो ऑनर्स बय लिखिछि सेथरे सेबडा को लिखिछि तोर प्लस 2 रे दरकार नै तेणु 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स एडा को पार्टिसिपेट करंती ट्रांसलेशन रे तेणु ट्रांसलेशन रो मध्य तीनटा स्टेप इनिशिएशन इलोंगेशन टर्मिनेशन तेणु इनिशिएशन पई किछि फैक्टर दरकार जेमति ट्रांसक्रिप्शन रे इनिशिएशन फैक्टर कोन थिला बैक्टीरिया रे सिग्मा फैक्टर एंड टर्मिनेशन पई रो फैक्टर एटी सेमति जनरल फैक्टर ताको आईएफ स्मॉल एस माने इनिशिएशन फैक्टर्स तापरे इलोंगेशन फैक्टर्स तापरे टर्मिनेशन फैक्टर्स ताले ट्रांसलेशन गोटे लॉन्ग क्वेश्चन होबो तो ट्रांसलेशन मींस प्रोटीन बायोसिंथेसिस आउथरा टिके मूलर कहि जाउची रिवीजन ट्रांसलेशन मींस प्रोटीन बायोसिंथेसिस ड्यूरिंग ट्रांसलेशन व्हाट विल हैपन ना एमिनो एसिड विल बी पॉलीमराइज्ड polymerization of amino acid will occur so that polymerization will be guided किए गाइड करिवो ना एमआरएनए थिबा जेनेटिक कोड ही गाइड करिवो तेणु जेनेटिक कोड ऑफ एमआरएनए विल गाइड द अमीनो एसिड सीक्वेंस 20 रकम रो अमीनो एसिड का परे कोटा आसीबो दैट सीक्वेंस तेणु एमआरएनए रो मुख्य काम कोन होला एमआरएनए इज ए टेम्पलेट मींस व्हाट बिकॉज़ इट कैरी जेनेटिक कोड it carry genetic information in form of code so what is that code it is nothing but the sequence of nucleotide genetic code mane kon it is the sequence of nucleotide translation mane nucleotide sequence will be translated into amino acid sequence teno translation re actually हुए kon ना प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड तयारी हुए तापर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जुगु जाइकरी फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड तयारी तेणु बैक्टीरिया बेसिक प्रोटीन तयारी कले शीघ्र शीघ्र सेल डिवीजन करिवो एथर डॉक्टर दिमाग लगेले कले एमिति एंटीबायोटिक दबा कार पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन बंद कर दबा बैक्टीरिया सेल डिवीजन करि परिबो जे रोग करि परिबो एमिति औषध दबा राइबोसोम से वाला खुजी बुलुथो एमआरएनए पाउ नथो ताने राइबोसोम को भुआ बुली दबा तेणु डॉक्टर माने डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स यूज करिकी ट्रांसलेशन और पोस्ट ट्रांसलेशनल स्टेप को चेंज करि देले मॉडिफाई करि देले सो दैट बैक्टीरिया कैन नॉट अंडरगो रैपिड सेल डिवीजन कारण बैक्टीरिया 20 मिनिट रे बाइनरी फिशन कर दो तार प्रोटीन हेले सिना तो रेप्लिकेशन करिवो कुतुकुतु के सेल डिवीजन करिवो एठी तार कुतुकुतु बंद कर दिया एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट कर
ताले एंटीबायोटिक्स कैन halt अटकई दबो the translation and post translation process clear वर्तमान रिक्वायरमेंट पढ़ियो ट्रांसलेशन रे जो पेप्टाइड बॉन्ड टा हबो एटा गोटे कोवैलेंट बॉन्ड ए कोवैलेंट बॉन्ड पे एनर्जी दरकार ना फ्री एनर्जी तो एठी तो हमें लिखिलेनी इटा आसीगला बाली आसीगला सो बाकी रे आसीगला मिस्त्री तो बाकी नबनी पूरा कैश टंका गणी नब तो ए ट्रांसलेशन प्रोसेस रे एनर्जी प्रोवाइड करिवो किए ना एटीपी जीटीपी यानी सब एनर्जी बेसिकली एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट दिस इज द एनर्जी सब्सटेंस बुझेला तापर राइबोसोमल सब यूनिट को जोड़िया पई मैग्नीशियम आयन दरकार मु कहिछि साइटोप्लाज्म रे लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट गुलु थांती during translation they will come together and associate to form a functional ribosome तेणु से फंक्शनल राइबोसोम हवा पाई किछि आयन्स दरकार मैग्नीशियम तेणु आम रिक्वायरमेंट्स रो टेबल बनै देले ट्रांसलेशन बा प्रोटीन बायोसिंथेसिस रो डेफिनेशन जानि देले प्रोटीन बायोसिंथेसिस रे पॉलीमराइजेशन हुए 20 रकम रो एमिनो एसिड रो से पॉलीमराइजेशन पई इंफॉर्मेशन एमआरएनए रे अछि से जेनेटिक इंफॉर्मेशन ता जेनेटिक कोड एबे मु तुमको पढौछि जेनेटिक कोड तेणु ट्रांसलेशन ता एठी हमर बंद रहला कारण ट्रांसलेशन बुझिया पई किछि आनुषंगिक दरकार तेणु जेनेटिक कोड ता हला आनुषंगिक जिंस सेटा न बुझिले ट्रांसलेशन किछि बुझि पाइबो ना चैप्टर ता मन रखियो why that chaperone is important because the chaperone assists for holding correct folding हला बस एबे आसले जेनेटिक आउ तबे सेही कथा कहूची एमआरएनए रो लैंग्वेज होची न्यूक्लियोटाइड पॉलीपेप्टाइड रो लैंग्वेज होची एमिनो एसिड तो ए दुईटा भितरे किछि कॉम्प्लीमेंटारिटी नाही ताहले एबे प्रश्न उठुची ए चारोटी लेटर रे तयारी ए चारोटी न्यूक्लियोटाइड रे तयारी आरएनए केमिति 20 टा एमिनो एसिड विशिष्ट पॉलीपेप्टाइड संभव होई करू सो हाउ दिस 4 नाइट्रोजन बेस कैन कोड फॉर 20 एमिनो एसिड ठीक ना ना if this 4 nitrogen base one letter correspond to one amino acid how many code we can get one base so 4 code possible 16 code short पड़िलानी so ribosome cannot treat one nucleotide as one code never so now you consider if out of 4 nitrogen base any 2 nitrogen base is a code suppose then how many code we can obtain 16 हमरो मिनिमम केतटा कोड दरकार 20 टा एमिनो एसिड पई 20 टा जेनेटिक कोड दरकार बा कोडन दरकार जेनेटिक कोड बा कोडन तो एठी जदि जेकोसी दीटा नाइट्रोजन बेस को गोटे राइबोसोम कोड बोली धरिबो ताले केतटा कोड होई परछि 16 टा 4 टा डेफिसिट होला ताले साइंटिस्ट रॉबर्ट गैमो सी प्रेडिक्ट कले जे 4 टा नाइट्रोजन बेस प्रति 3 टे लेखे जदि गोटे कोड हुए ताले केतटा कोड होची 64 ताने 20 रु ऊर्ध्व होला एइटार संभावना अछि ताले जेनेटिक कोड रो डेसिफियरिंग माने कोड भांगीबा तमे सांग माने गोटे छुआटा टिके मोटा बोली ताको ना देलो बेंगो बोली ता सामने रे बेंगो आइला कहले से जानि परिबो कारण एटा गोटे कोडेड मेसेज से तार कोड को डिकोड करि नै तेणु साइंटिस्ट माने चेष्टा कले
एमआरएनए रो कोड को डिकोड करिया ए कोड रो डिकोडिंग प्रोसेस को इंग्लिश रे कहते डेसिफियरिंग ऑफ जेनेटिक कोड। तेणु जेनेटिक कोड को डेसिफियर करिवा पई कहार जनकर कंट्रीब्यूशन नाही। भल से सुनियो, इट इज नॉट द कंट्रीब्यूशन ऑफ वन साइंटिस्ट, बहुत साइंटिस्ट कर अवदान अछि। प्रथम अवदान आसिला एठी प्रथमे कहली काना जॉर्ज गैमो जड़े फिजिशियन, सी ही प्रथमे जुक्ति बाढ़िले जे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ 4 to the power 3 would generate 64 कोडॉन्स। एनसीईआरटी बोई रे 111 पेज रे अछि। ताले जॉर्ज गैमो फर्स्ट आर्ग्यूड दैट a genetic code must be consist of 3 nitrogen base। ये प्रथमे कहले। तेणु जे एमआरएनए मॉलिक्यूल रे जे कोनसी तीनटा नाइट्रोजन बेस गोटे गोटे जेनेटिक कोड हे परियो। जे कोनसी दीटा काई कि परियोनी ताले 16 टा कोड होचे, 4टा शॉर्ट कोड जे हमर 20 टा एमिनो एसिड पई कोड दरकार। तेणु जॉर्ज गैमो एटी कोड 1 मार्क क्वेश्चन कोड परिबो। Who first proposed that genetic code is a triplet? Triplet माने 3 अक्षरी। All of you know what is 2 अक्षरी? गाली गलौज में हम 2 अक्षरी कोड डालते हैं, 2 अक्षरी रो बोकिना। So here genetic code is 3 अक्षरी, ता माने genetic code is triplet। ट्रिपलेट माने एनी 3 नाइट्रोजन बेस इज ए कोडन। ताले जो 64 टा कोडन हैला से 64 टा कोडन रो गोटे डिक्शनरी बनै परियो। ताले जेनेटिक कोड इज ए कोडन डिक्शनरी, जिस डिक्शनरी में 64 कोडन को लिखा जा सकता है। एमआरएनए रो 5 प्राइम एंड एमआरएनए रो 3 प्राइम एंड एमआरएनए रो पोलैरिटी अछि ना। देखो टिके एठी 3टा नाइट्रोजन बेस को मु जदी कोड कहली, एई एटा कोन हला 5 प्राइम बेस बोल के देखो ए 3टा लेटर कोटे कोड। एई एटा 5 प्राइम बेस, यू टा होची मिडिल बेस, जी टा होची 3 प्राइम बेस, 3टा बेस हला। तेणु एठी गोटे कोडन डिक्शनरी बने 64 टा जेनेटिक कोड को लिस्ट करिबा। एठी गोटे चेकर बोर्ड बने देली जेनेटिक्स रो पनेट स्क्वायर बडा। एठी लिखि दोछि 5 प्राइम बेस, केतटा बेस हमर अछि 4टा, यूसीएजी लिखि देली यूसीएजी। तेणु 5 नंबर बेस रो आरंभटा जे कोनसी गोटे मिडिल बेस भी से भले आई करे यूसीएजी एक चारटा गोटे हो ना। तेणु एई बॉक्स भितरे वर्तमान यू 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 थर्ड बेस का कोन हो एठी? थर्ड बेस पोजीशन यूसीएजी। से यूसीएजी ना और नया किछि बेस अछि। तेणु एठी लास्ट रे कोन कर दोछि यूसीएजी। एथर डिक्शनरी लिखि परिबो। ए बॉक्स लिखिबा कोन हो सीए 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 मुमे सीए। तापरे एठो नेडियो कोन यूसीएजी यूसीएजी। तामाने हम कोन देखिलो प्रत्येक कोडन रो प्रथम 2टा लेटर फिक्स, थर्ड लेटर ता बदली पाडुची। तेणु मु गोटे शब्द कही ओवल बेस पोजीशन टीआरएनए पढ़ेला ओवल मतलब चलता है। फास्ट 2टा किंतु नहीं चलता है, फिक्स रहना है। थर्ड चेंज हो तो चलता है, थर्ड चेंज होले चलबो। से चलबो वाला पोजीशन है थर्ड बेस पोजीशन।
ताको ओवल बेस पोजीशन बोली कहते तो कहले से शब्दटा लिखा है मु कहिदेली हायर क्लास रे तुमको साहाय्य करिवो WOBBLE ओवल तेणु तमे से वाला ए बॉक्स टा बाहर करि परिबो तेणु प्रति बॉक्स रे केतेटा कोड हैला चारटा ताले 1 2 3 4 4 4 16 एपटे चारटा माने 64 टोटल 64 टा कोड पाइबो ना तेणु ए 64 टा कोडन भितरु तीनटा होची स्टॉप कोडन ट्रांसलेशन बंद करे दे आर नॉट रेस्पोंसिबल फॉर एमिनो एसिड सेटा साइंटिस्ट माने रिसर्च करी बाहर करले डेसिफियर करी बाहर करले तेणु से स्टॉप कोडन ए बॉक्स रे अछि मेडे लिखि दोची UA थर्ड पेजटा लिखि दबा UCAG तेणु स्टॉप कोडन कोटा हला एटा गोटे स्टॉप कोडन UAG ताने हमें जेनेटिक कोड रो कैरेक्टर पढुछु जेनेटिक कोड रो कैरेक्टर सो जेनेटिक कोड रो प्रथम पॉइंट कोन कहली ना जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट एटा हम प्रथम पॉइंट कहली एई सब कैरेक्टर को जोड़ी दे गोटे वाक्य रे कहि देले डेफिनेशन भी छु जेनेटिक कोड ट्रिपलेट एक कथा किए कहले हु प्रपोज्ड जॉर्ज गैमट ट्रिपलेट का मतलब adjacent 3 nitrogen base behaves like a codon साइंटिस्ट पुणी अति चला गले कहले एटा जदि कोड हैला ता परवर्ती कोड ता कोनटा हबो सेटा गोटे छाडी कि ए तीनटा हबो ना ए तीनटा को संपूर्ण छाडी कि ए तीनटा हबो से भी तो संभव होउची कोड माने तीनटा लेटर रहिथिबो तनो सेही जदि एही हमें देखिबा AUG ता परवर्ती कोडन UGG ताले UG ता शेयर हे गेला एई कोडन रे भी एई दीटा पे शेयर होची एई कोडन रे शेयर होची एमिति कोन हुए साइंटिस्ट देखिले हुए नाही जदि राइबोसोम एटा को पढी सारिछि ताले सेई बेस को आउ काहा को भी पढिबोनी ताको छाडी देकी ता परवर्ती तीनटा को आउ गोटे कोडन धरिबो ताले सेई कैरेक्टर ताको कोन कहबा जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग एटा वेरी इंपोर्टेंट कैरेक्टर कोड जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग आउ गोटे कैरेक्टर कोन साइंटिस्ट कहले तमे जेमिति आमे जेमिति सेंटेंस पढुछु जोटी कॉमा बा पंक्चुएशन रहि जाउची आमे टिके रहि जाउछु सेमिति ड्यूरिंग ट्रांसलेशन राइबोसोम कभी-कभी किसी नाइट्रोजन बेस को कॉमा जैसा सोचकर पढ़ता नहीं है एमिति कोन हुई कि ना ता माने कोनोसी नाइट्रोजन बेस को से कॉमा बोली ट्रीट करिवनी दैट मींस जेनेटिक कोड इज कॉमालेस that means during translation no nucleotide will be considered as a punctuation ता अर्थ कॉमालेस बस आ होची जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट एटा आउट कैरेक्टर डीजेनरेट बा मो इंग्लिश रे कोइ परिबी डिजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड बा जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट एनसीईआरटी बुक रे देछि डीजेनरेट रो अर्थ कोन देछि सम एमिनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडन तेणु एटा ही होछि डीजेनरेट रो अर्थ मागरो कहि देछि 4 टू द पावर 3 मींस 64 64 टा कोडन एक्चुअली 20 टा एमिनो एसिड ता माने जनका गोटे गोटे एमिनो एसिड पई बहुत कोडन संभव होई पारे This is called degeneracy of genetic code. पहले in genetic code, one amino acid will be coded by more than one codon. जेमिति आम डिक्शनरी रे एक प्रथम दीटा कोडन फिनाइल एलानाइन एमिनो एसिड पई तम जेनेटिक कोड टेबल बहिरे देखिबो सेथिरे तीनटा नाइट्रोजन बेस माने कोड देथिबो
ता पाखरे एमिनो एसिड रो 3 लेटर एब्रिविएशन शब्द देथिबो बोले फी लिखि दियो फी माने कोन फिनाइल एलानाइन गोटे एमिनो एसिड रो ना ताने देखो फिनाइल एलानाइन यू 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 सी ता माने थर्ड बेस का चेंज हेले भी किछि फरक पडुनी प्रथम बेस का यू यू कंपल्सरी होबा अछि ताले थर्ड बेस पोजीशन को मु की पोजीशन कहितली ओवल पोजीशन तापर देखो ता परवर्ती 6 टा एटी कर दबा सी यू सी है ना सी यू बाय ता माने एठी कोन लिखला यू सी ताने टोटल 6 टा जाको कोडन ल्यू बोले लिखा है एलयू ल्यू माने ल्यूसिन ल्यूसिन एमिनो एसिड पई जाय ताने प्रमाणित हैला व्हाट इज डिजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड one amino acid can be coded by more than one codon that is degeneracy of genetic code आउरे कैरेक्टर होची जेनेटिक कोड रो एई 64 टा कोडन भितर भल कि सुनो मन देई एई 64 टा कोडन भितर गोटा स्टार्ट कोडन अछि ए बॉक्स रे सेटा अछि ए यू चारटा है यू सी ए जी तो ए यू जी जो आसिला एटा स्टार्ट कोडन एटा मन रखिबो ए यू जी ला स्टार्ट कोडन बा इनिशिएशन कोडन तो एमआरएनए रो जो डेट ट्रांसलेशन होबनी राइबोसोम खुजी बुलिबो ए यू जी न पाइले ट्रांसलेशन करबो तुम मु पुणे आसंता क्लास रे मझरे भी ए यू जी रही करे राइबोसोम जो जानिबो के से मझी वाला ए यू जी का इनिशिएशन ना साइड वाला का से पुणी का साइड रे गोटे सिग्नल खुजी बुलिबो अरे से सिग्नल टा मझरे नथिबो पूरा कोई मेकानिज्म बेले कोई एबे कंफ्यूजन करनी तापर आ तीनटा कोडन होची स्टॉप कोडन से स्टॉप कोडन मु दुईटा लिखि देछि एठी यू ए जी आ गोटे होची यू जी ए तीनटा कोन कहबी स्टॉप कोडन्स ताले टोटल कोडन केतोटा 64 out of 64 these 3 stop codons never codes for any amino acid राइबोसोम जदि आको पाखरे पहुंच जीवो गोटे एमिनो एसिड केबे भी जोड़िबो सेठी ट्रांसलेशन बंद करबो तेणु एई तीनटा स्टॉप कोडन को बेले बेले हमें नॉनसेंस कोडन कहू साइंटिस्ट माने पुणे उद्वेग प्रकाश कले काई कि एमानकर नॉनसेंस कहजिवो कारण एमानकर सेंस अछि कारण एमाने ट्रांसलेशन को बंद कर दो जो एटा कम बड़ कथा नय so they should not be treated as nonsense they have certain sense they are stopping the translation तणो एमानकु आमे स्टॉप कोडन कहबा उचित होबो नै कारण जर्मन रो 3 जण लैबोरेटरी साइंटिस्ट थिले सेही लैबोरेटरी रे 3 जण प्रसिद्ध ठक नाम रे परिचित थिले तणो तांकर कोड वर्ड देथिले साइंटिस्ट माने अकार एम्बर ओपाल ओकार एम्बर ओपाल तणो याकु कहआ जाय ओकार एम्बर ओपाल हां गूगल रे सर्च करके पढि परिबो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ताले डिजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड पढै देली 64 टा कोडन भितरु मोर देन वन कोडन पॉसिबल फॉर एनी वन एमिनो एसिड बुले की कहले वन एमिनो एसिड विल बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडन जेनेटिक कोड होची 64 टा कोडन रो गोटाय डिक्शनरी जेउ थिरे तीनटी स्टॉप कोडन ता माने 64 - 3 रहिला केते 61 ताले सेही 61 कोडन 20 टा एमिनो एसिड को कोड करबो सेथुरो एयूजी हला स्टार्ट कोडन परीक्षा रे आसे राइट द कोडन बा व्हिच कोडन हैज डुअल फंक्शन केउ जेनेटिक कोड 64 टा कोडन भितरु कोन कोडन रो दुईटी काम रहिछि एयूजी रो से मिथियोनाइन पई दाई ताने मिथियोनाइन एमिनो एसिड पई दाई
कारण राइबोसोम एयूजी पहुंचला माने मिथियोनाइन एमिनो एसिड टा आनी जोड़िबो आ सेटा ही गोटे स्टार्ट कोडन रूप में परिचित ताने इट कोड्स फॉर मिथियोनाइन इट आल्सो एक्ट्स एज ए इनिशिएटर कोडन मन रखो एनसीईआरटी बुक रो 5 नंबर पॉइंट रे लिखाई छि सैलिएंट फीचर रे तापरे आ गोटे पूछि द कोड इज नियरली यूनिवर्सल ता माने ए सेम कोडन डिक्शनरी एयूजी टा मिथियोनाइन बैक्टीरिया साइटोप्लाज्म रे राइबोसोम से एयूजी पड़ला माने मिथियोनाइन जोड़िबो मो देहरे भी जोड़िबो तम देहरे जोड़िबो तेणु एटा को अनएम्बिगुअस बोली कोइ परिबा जेनेटिक कोड रा आउ के कैरेक्टर इट इज अनएम्बिगुअस एम्बिगुअस माने कोन जो स्टेटमेंट रो दीटा मीनिंग हुए जेमिति गांधारी पो को आशीर्वाद देले धर्म रहे जय पो जाइथिला मां को आशीर्वाद नवा पई मां ताको गोटे आयरनिक स्टेटमेंट कहि देले तू जदी धर्म रे तू तो जय हो ए भले स्टेटमेंट को इंग्लिश रे कहबा एम्बिगुअस स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट रो दीटी अर्थ हेई पारे एम्बिग्युइटी रही पारे जेनेटिक कोड ता अनएम्बिगुअस ता माने मु सानो छुआ बेले मो एयूजी ट्रांसलेशन होतला मिथियोनाइन मु बुढाई गेली मोर एयूजी टा ट्रांसलेशन है फिनाइल लेला ना केबे भी हो ता माने वर्ष जाक सकल परिस्थिति रे एनी फिजियोलॉजिकल कंडीशन रे एयूजी माने मिथियोनाइन यूनिवर्सल जानि परलो प्रोटोजोआ फंगस समस्तंकर सेही कोड काम करिवो अनएम्बिगुअस माने जानि परलो द सेम कोडन कोड्स फॉर सेम एमिनो एसिड एट एनी फिजियोलॉजिकल कंडीशन ताको हमें अनएम्बिगुअस कहबा किंतु जेनेटिक कोड तम एनसीईआरटी बुक रो 4th पॉइंट रे लिखा होची द कोड इज नियरली यूनिवर्सल ता माने 100% यूनिवर्सल नो सम कामहा डिफरेंसेस देया से कामहा डिफरेंस कोडी पाइबा ना माइटोकॉन्ड्रिया भितरे पाइबा किछि प्रोटोजोआ रे पाइबा तेणु बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया रे ट्रिपल यू will code for phenylalanine eta hochi universal ro example kintu some exceptions are also there tenu kichi exception bi roichi tenu what are the termination codons these three are termination codons what is the initiation codon how many codons out of 64 responsible for translation mane for coding for amino acid 61 tale एतिकी आज जेनेटिक कोड पढ़ेली जेनेटिक कोड रो डेफिनेशन ते कहली जेनेटिक कोड इज द ट्रिपलेट कोड दैट भले कि सुनिबो जेनेटिक कोड रो डेफिनेशन जेनेटिक कोड इज द ट्रिपलेट कोडन दैट गाइड्स द एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड अदर सेंस रे मो डेफिनेशन कहि परिबे सब कैरेक्टर को जोड़ी दे गोटे वाक्य रे डेफिनेशन सो जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट नॉन ओवरलैपिंग कॉमालेस डिजेनरेट अनएम्बिगुअस ठीक है आउ जने कोइ परिबो जेनेटिक कोड इज ए कोडन डिक्शनरी ऑफ 64 कोडन्स हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टर्स सो लिखि दो तेणु मोर कहबार अछि जेनेटिक कोड रो साइंटिस्ट माने कोन तांकर अवदान रहिला ए जेनेटिक कोड रो केउ कोड को एमिनो एसिड पई एटा को डिकोड करथिले हरगोविंद खुराना जे कि इंडियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट से जोटी जन्म हिथिले वर्तमान से पंजाब पाकिस्तान अंडर रे अछि से जेतेबेले जन्म हिथिले देश स्वाधीन पूर्व इंडिया पाकिस्तान एक थिला तनो आमे ताको कोन कहजु पाकिस्तान बॉर्न इंडियन साइंटिस्ट नो एतला पाकिस्तान जन्म ही नथिला आमे कहजु इंडियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट हरगोविंद खुराना तेणु एका कालीन क्यों कोड को एमिनो एसिड पई तीनटा लैबोरेटरी रिसर्च चलछि खुराना को लैबोरेटरी रे मार्शल नेरिनबर्ग ताको लैबोरेटरी रे ओकोआ सेवेरो ओकोआ ताको साइंटिस्ट ए तीन जन साइंटिस्ट को ना लिखाई छै बोले तेणु ए सेवेरो ओकोआ तांकर साइंटिस्ट तांकर लैबोरेटरी रे भी काम चलछि जति जति आउ गोटे दिन हेरफेर हो जाता
नोबेल प्राइज खोराना नुहे सेभेरो ओकुआ पाई था। सेभेरो ओकुआ 3 टाइम्स नोबेल प्राइज विनर, 3 थर नोबेल प्राइज पाई चंदी। पढ़ियो सब तांको फोटो फोटो देखियो, फोटो टांगी के रखियो हला। तेणु मु जेतेबेले एमएससी पढ़ुଥିଲି सेतेबेले सेभेरो ओकुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी को आस्थिले। से दिल्ली यूनिवर्सिटी रे OCHOA ACVER सेभेरो OCHOA ओकुआ। तेणु ये सेभेरो ओकुआ इंटरव्यू रे कहूथिले जदि आ 24 घंटा लेट होता नोबेल प्राइज मु आउ थे पाई था खोराना। तेणु एमानकर अवदान आम कमिंग क्लास रे पढ़िबा। टिल देन थैंक यू गुड बाय।